नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश राय एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इमेजिनेट द प्लस q चार्ज एट पॉइंट O and a electric field produced surrounded by it. Electric field surrounded produced by it and a point, take a point at infinity and imagine positive q naught charge, testing charge positive q naught, and we want to bring from infinity to any point. Take a point in electric field, suppose it is 1, 2 or 3. We want to bring positive q naught charge from infinity to any point 3, 2 or 1. So that it work करना पड़ेगा, work to be done because two similar charge are repel to each other. Repel करेंगे एक दूसरे को, so that work करना पड़ेगा repulsion force के against में. Suppose कितना work करना पड़ेगा? Let work done to bring q naught charge from infinity to any point is suppose W. Therefore, work done to bring positive unit charge from infinity to any point is W by q naught, and this work is equal to the electric potential on that point and represented by V, so that V equal to W by q naught. This is the basic formula of potential. Potential, electric potential is a scalar quantity and depend on the nature of charge. If charge is positive, then potential will be positive, and if charge is negative, then potential also will be negative. Now अब हम बात करते हैं बेटे potential difference की. Again we can take 2 point A and B. 2 point A and B. Now testing charge imaginate at point B. We want to bring it from B to A, so that same condition में work done to bring from infinity के replace में बेटे हम बात करेंगे from B to any point is A. Work done to bring from B to A is equal to W, so that work done to bring positive unit charge from one point B and its other point A, it means it is equal to the potential difference between 2 points. So that V के replace में बेटे हम बात करेंगे potential difference, it is VA minus VB equal to W by q naught. तो बेटे बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में? एक्चुअल में दोनों एक ही क्वांटिटी है, बट जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, एंड हम जब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, सो दैट वर्क डन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल एंड इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. एंड दोनों ही क्वांटिटी का जो यूनिट है वो क्या बनेगा बेटे? यूनिट बनेगा बेसिक फार्मूले से. बेसिक फार्मूला W by q naught. W की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट आप सभी जानते हैं जूल, एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलम. जूल पर कूलम इसको बेटे कहते हैं क्या? हम क्या कहेंगे इसको? वोल्ट कहेंगे. ओके, बट इट इज इन SI सिस्टम. और अपन जब CGS की बात करेंगे तो जूल के रिप्लेस में क्या हो जाएगा? अर्क हो जाएगा, एंड कूलम के रिप्लेस में हो जाएगा स्टेट कूलम, एंड यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेट वोल्ट की बात करेंगे. तो ये बेटे बेसिक फार्मूला था पोटेंशियल का एंड पोटेंशियल डिफरेंस का. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे. क्वेश्चन 1 सुनिएगा ध्यान से. Derive the formula for electric potential. Derive the formula for electric potential due to point charge at any point. बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Electric potential due to point charge at any point. This is a very important question for this year. Suppose that plus q charge at point O. This is point charge. We want to find the electric potential at point P at a separation R from point O. हमें एक पॉइंट P पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल.
और इसके लिए हम क्या करेंगे बेटे, आपको मालूम है डेफिनेशन, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, और दैट पॉइंट कौन सा है, P है, P पर हमें फाइंड करना है। बट हम इसके लिए बेटे दो स्मॉल सेगमेंट में 2 पॉइंट A और B का इमेजिनेशन करते हैं। दिस इज अ स्मॉल सेगमेंट AB and the distance between the points are dx and positive q naught charge placed at point B। पहले हम क्या करेंगे बेटे, पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव q naught चार्ज को B से A तक लाएंगे। इसके लिए वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज प्लस q एंड प्लस q naught चार्ज रिपल टू ईच अदर, रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। बट B और A की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है तो वर्क का जो अमाउंट है वो भी स्मॉल होगा, मींस इट इज dw। और अब हम फोर्स की बात करते हैं, रिपल्सन फोर्स है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, सिमिलर चार्जेस रिपल टू ईच अदर, मींस रिपल्सन फोर्स का डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी आल्सो सिमिलर एज फोर्स, जो फोर्स का डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन होगा इंटेंसिटी का। एंड एक और इंपॉर्टेंट बात, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बेटे लेफ्ट साइड है एंड फोर्स का या इंटेंसिटी का राइट साइड है, मींस एंगल बिकम 180 डिग्री। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं, फ्रॉम B टू A लाएंगे, उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, एंड बेसिक फार्मूला फ्रॉम ऑफ द वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को कैलकुलेट सबसे पहले करेंगे, पहले हम फोर्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाय कूलम्ब्स लॉ, टू चार्जेस प्लस q एंड प्लस q नॉट चार्ज। सो बेटे यहीं से स्टार्ट करते हैं, फोर्स बिटवीन प्लस q एंड प्लस q नॉट चार्ज बाय कूलम्ब्स लॉ, so that m equal to 1 by 4 pi epsilon naught k, q1 के रिप्लेस में q आ जाएगा एंड q2 के रिप्लेस में q नॉट आ जाएगा, q नॉट एंड द डिस्टेंस इज, अब आपको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितनी है O से स्मॉल सेगमेंट की, स्मॉल सेगमेंट्स में 2 पॉइंट होते हैं, दोनों की ही डिस्टेंस, किसी एक की नहीं, दोनों की डिस्टेंस O से कितनी आएगी, x आएगी। इवन ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट विथ रिस्पेक्ट टू O दोनों की डिस्टेंस नियर इक्वल टू सेम होगी, उसको हमने कितना सपोज किया, x किया, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटे, x स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब नाउ हम वर्क को कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल वर्क डन dw, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे f into dx, वेक्टर को रिमूव कर दीजिए, cos थीटा फाइंड हो जाएगा, f dx cos थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ये अभी आपको क्लियर किया मैंने, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री आएगी, यहाँ 180 डिग्री पुट करेंगे हम, f dx cos 180 एंड द वैल्यू ऑफ cos 180 इज -1 f dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल वर्क dw। नाउ अब हम बेटे f को पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, f की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मींस dw इक्वल टू माइनस f की वैल्यू यहां से पुट करेंगे 1 by 4 pi epsilon naught k q naught by x square and also dx, this is the amount of small work and we want to calculate it for total work। total work के लिए बेटे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बट उसके लिए आपको लिमिट रखना पड़ेगी फ्रॉम पॉइंट इंफिनिटी टू p, लिमिट इज इंफिनिटी टू p, p की मेजरिंग करो डिस्टेंस का तो कितना आएगा, r आएगा, तो टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क dw का इंटीग्रेशन w, और यहां आपको इंटीग्रेशन की लिमिट बताना पड़ेगी इंफिनिटी टू r and 1 by 4 pi epsilon naught k q naught by x square and dx। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा बेटे, तो w इक्वल टू, इन सभी क्वांटिटीज को बाहर ले लें, बिकॉज यहाँ dx लिखा है, तो इंटीग्रेशन ओनली किसका होगा, ओनली x का होगा, बाकी सब बाहर आ जाएंगे, तो सभी को बाहर ले लें, q naught by 4 pi epsilon naught k and remaining quantity
1/x², इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, सो इट इज माइनस हो जाएगा, माइनस x टू द पावर -2। अब इंटीग्रेशन में आपको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, x टू द पावर n dx, तो आंसर इज x टू द पावर n+1/n+1। इस फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे हम, है ना, सो दैट w विल बी q0। एंड आल्सो बेटे ये माइनस लेके चल रहे हैं हम, ये माइनस का भी ध्यान रखना है, मैं भूल गया, आपको माइनस का भी ध्यान रखना है, ये माइनस लेके चलेंगे हम, -q0। माइनस कहाँ से आया था, cos 180 की डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो इस माइनस को भी लेके चलेंगे। एंड अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे आप इसमें x टू द पावर -2 + 1 मींस कितना आएगा बेटा, -1 डिवाइडेड बाय आल्सो -1 एंड लिमिट इज इंफिनिटी टू r। देन ये जो माइनस है ना बेटा, इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, w = q0 y 4πε0 k। एंड अब इसको और सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, तो पावर प्लस की हो जाएगी, इंफिनिटी टू r हो जाएगा। देन आप क्या करेंगे बेटे, लिमिट को पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है, स्मॉल r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इंफिनिटी, मींस w = q0 by 4πε0 k, and here is 1 upon upper limit, 1 upon r minus 1 upon infinity, and the value of 1 upon infinity is 0। आप सभी जानते होंगे 1 upon infinity की वैल्यू कितनी होती है बेटे, 0 होती है। So that w will be q0 by 4πε0 k into 1/r। इसका क्या हो गया, 1 upon infinity will be 0। This is the value of w, and now basic formula is electric potential V equal to W by Q0। We know that W by Q0। तो यहाँ बेटे हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे W की फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, से वैल्यू पुट कर देंगे, मींस V equal to Q0 by 4πε0 k 1/r, एंड आल्सो डिवाइड में हम देख सकते हैं, आल्सो डिवाइड में क्या आएगा, Q0, तो आप यहाँ Q0 लिख दीजिए, Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग फार्मूला इज 1/4πε0 k एंड q by r, पीछे भी इसका यूनिट यूज करेंगे, यूनिट इज वोल्ट। तो दिस इज द फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। अब जो हमारा बेटा बाकी जो चैप्टर है इसी फार्मूले के हेल्प से आगे बढ़ेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब बेटे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एक्सियल पोजीशन एंड इक्वाटोरियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू हम फाइंड करेंगे पहले एक्सियल पोजीशन में, देन हम फाइंड करेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन। तो पहले हम फाइंड करते हैं बेटे एक्सियल पोजीशन में। वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेड बाय टू चार्जेस प्लस q and minus q, its center point is O and distance between the charges is 2l, l and l will be total will be 2l, and now the axial point is P at separation r from center point O। इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन। अब बेटा इसमें 2 पॉइंट चार्ज हैं, प्लस q एंड माइनस q, and we know that electric potential due to point charge is 1/4πε0 k q by r। what is r? r is the distance from the charge। यहां से डिस्टेंस मेजरिंग करेंगे तो ap आएगा, आप यहां से मेजरिंग करेंगे तो bp आएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, है ना। इसके बारे में हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू प्लस q चार्ज, इट इज v1 इक्वल टू 1/4πε0 k q by r के प्लेस में कितना आएगा बेटे, ap आएगा। नाउ ap की वैल्यू पुट करें तो ओवरऑल O2p कितना है, r है, उसमें से इतना माइनस कर दें, सो रिमेनिंग इज r minus l, means v1 equal to 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई ए पी की वैल्यू पुट करेंगे आर माइनस एल. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड अगेन फ्रॉम माइनस q चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. So it is V2 equal to, and we know that potential is a scalar quantity, means इसका क्या होता है, जैसे चार्ज होता है सेम उसी नेचर का क्या होता है पोटेंशियल. पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी नेगेटिव. मींस V2 equal to 1 by 4 pi epsilon naught k q. q के रिप्लेस में आपको माइनस q लिखना पड़ेगा बिकॉज चार्ज इज माइनस q एंड डिस्टेंस इज bp. bp को मेजर करेंगे b to p. It is L and it is R plus L. So that V2 equal to 1 by 4 pi epsilon naught k minus q by bp के रिप्लेस में लिखेंगे बेटा R plus L. This is equation number second. अब हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P. टोटल पोटेंशियल फाइंड करें V equal to V1 plus V2. अब V1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में है, सेकंड में 2 की है, बट आप ध्यान से देखो बेटे ये प्लस है और हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको देखना यह माइनस है तो यहाँ पर बेटे माइनस आ जाएगा. मींस V इक्वल टू पहले V1 की वैल्यू पुट करते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k एंड q बाई r माइनस l. और यहाँ प्लस है बट इस माइनस के कारण यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बाई r प्लस l. अब यहाँ से बेटा बहुत सिंपल मैथ्स है जो आपको अच्छी तरह से आती है. सिंपल मैथ्स का यूज करेंगे आप लोग. पहले हम कॉमन ले लेंगे, देन उसके बाद एलसीएम ले लेंगे. तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्वांटिटी इज q एंड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k. एंड यहाँ पर क्या आएगा बेटे, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम विल बी r माइनस l एंड r प्लस l. और आपको फर्दर सॉल्व करना आना चाहिए. r प्लस l इधर आ जाएगा r प्लस l. एंड आप देख सकते हैं माइनस है तो माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे हम एंड r माइनस l. अब इसको और आगे सॉल्व करें. v इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k एंड माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे माइनस r हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा एंड l प्लस का तो l प्लस l विल बी 2l हो जाएगा. तो आपको याद होगा 2l का क्या यूज है, 2l एंड डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर. क्या होता है q into 2l, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मींस q into 2l के रिप्लेस में हम p लिख सकते हैं. मींस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k एंड इसके रिप्लेस में p लिख देंगे तो p बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर एंड पीछे हम इसका यूनिट यूज करेंगे वोल्ट. So this is the formula for electric potential in axial position due to an electric dipole. तो बेटा ये हो गई एक्सियल पोजीशन. नाउ अब हम बात करेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन की. उसके पहले आते हैं हम दो कंडीशंस की यूज करेंगे. k की वैल्यू 1 पुट कर देना एंड रियलिटी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी साइज बहुत स्मॉल होती है, छोटी होती है. सो दैट है ना l इज वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू विद कंपैरिजन ऑफ r. कंपैरिजन करेंगे r से तो l की वैल्यू बहुत कम आएगी. जब आप l को नेग्लेक्ट करेंगे बेटे तो क्या बचेगा, ये यहाँ से हट जाएगा और ओनली बचेगा v इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k एंड p बाई r स्क्वायर. जिसे हम बोल्ट का यूज करते हैं. ओके, सो ये फार्मूला हो गया बेटा कंप्लीट इन एक्सियल पोजीशन में. अब हम बात करेंगे इक्वाटोरियल पोजीशन की. नाउ वी स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वाटोरियल पोजीशन. इक्वाटोरियल पोजीशन is the point is in the perpendicular y-sector. आपको पता है इक्वाटोरियल पोजीशन कहाँ होती है, परपेंडिकुलर y-sector पर होती है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड बाय टू चार्जेस प्लस q एंड माइनस q. Center point is O. The distance of A to O is L. Also O to B is L. Total become 2L. And the point P at in equatorial position. The distance of P is O is R. O से P की डिस्टेंस कितनी है बेटे, R है. अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम, ज्वाइन A to P and P to B.
हम देख सकते हैं दिस इज द राइट ट्रायंगल AOP एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम्स हाइपोटेन्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम्स का यूज करके बेटा, तो कितना आएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एंड इसका रूट लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे एंड डिस्टेंस ऑफ A to B एंड B to P विल बी इक्वल। इक्वल क्यों होगी? बिकॉज़ पॉइंट इज इन द इक्वेटोरियल पोजीशन, दोनों जगह से पोजीशन उसकी इक्वल है। नाउ potential at point P due to plus q charge, it is V1 equal to 1 by 4 pi epsilon naught k q by distance कितनी आएगी बेटे? A to P is AP, इक्वेशन फर्स्ट है। अगेन potential at point P due to minus q charge, V2 equal to 1 by 4 pi epsilon naught k q के रिप्लेस में आपको लिखना पड़ेगा माइनस q and distance is BP। And now total potential at point P V equal to V1 plus V2, so that V equal to 1 by 4 pi epsilon naught k q by AP। and यहाँ बेटे माइनस है और आपको यहाँ समझना है प्लस, लेकिन बट यहाँ माइनस क्यों हो जाएगा? बिकॉज माइनस q चार्ज एंड 1 by 4 pi epsilon naught k q by BP। but it is clear that from diagram AP equal to BP, दोनों ही इक्वल है और दोनों की ही वैल्यू कितनी है बेटे? रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप ओवरऑल पूरे है ना फार्मूले को अगर हम ध्यान से देखें तो सभी एक जैसा है, एक प्लस का और एक माइनस का, बट AP और BP डिफरेंट है। तो यहाँ हमने क्या प्रूव किया कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, सिमिलर है, कितनी है? रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन बिकम जीरो हो जाएगा, बिकॉज़ एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएंगे। सो आपको ये एमसीक्यू में भी याद रखना बेटे कि इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बेटे कल हम बात करेंगे कैपेसिटी की बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको पोटेंशियल के बारे में बात की आपसे, है ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।